The Crystal Cave by Arup Kumar Datta. "Taste this," Grandma Kamlong said. She scooped out a ladleful of broth from the pan over the fireplace. It smelt delicious. Grandma blew on the bamboo ladle to cool the broth. Then she poured a little into Tenyak and Changun's open mouths. "Yuck!" exclaimed Tenyak. "It tastes awful." "Don't like it, do you?" said Grandma with a toothless grin. "But watch now." Using the ladle, she scooped up a little salt from a wooden bowl and put it into the broth. She sang a Nokt ballad as she stirred. Then she made the children taste the broth once more. "Delicious, Grandma," they said, smacking their lips in approval. "Magic, isn't it?" Grandma said. "The broth was tasteless before, but now it is delicious. What caused this miracle?" "Salt," the children said in chorus. Grandma placed 3 reed mats upon the floor, as well as dishes of wood and bamboo tumblers. Ladling out steaming rice and broth on the plates, she said, "That's right. For the Nokt, salt is more precious than gold." "Our village was rich in the past," continued Grandma. "We grew millet and paddy in our fields. The jungles gave us shrubs, ferns, and fruits. Our young men went hunting for meat. And, most important, we had salt." "Did we make our own salt, Grandma?" Changun asked, surprised. "Yes, we did. A salt spring used to flow by our village. We built shallow troughs and filled them with salt water. The sun dried away the water, leaving grains of salt in the troughs." "Must have been a lot of salt," Tenyak observed. "Yes, much more than what our village required. Our men stuffed the surplus into hollow bamboo tubes and took it to the plains each winter. They bartered the salt for clothes, beads, and other necessities." "But there's no salt spring now," Changun said. Grandma sighed. "Our village is poor now. We are no longer self-sufficient. Our men walk to Khonsa township to buy salt." "Did the salt spring dry up?" Tenyak asked. "Yes, it happened one winter, years ago. Our source of wealth dried up with it." "Why did it dry up?" persisted Tenyak. "No one knows." "Tell me, Grandma, he said. If the spring flows again, will it bring prosperity to our village?" "Certainly," smiled Grandma Kamlong. Later in the afternoon, Tenyak and Changun went to search the spot where the salt spring had flowed into the river. To their surprise, they had no difficulty. The furrow through which the salt spring had flowed was clearly visible. Only ferns and creepers covered the furrow. They could see it wind up the mountain, a ribbon of light green against the darker green of dense jungles. Tenyak cried, "We can follow it upstream." Early next day, after their morning meal, Tenyak and Changun started for their quest. Both had bamboo tubes strapped to their backs to carry drinking water in them. They were children of the mountains. The steep climb may have exhausted others, but not them. They were not afraid of the jungles either. Because they lived close to nature, they knew that most of these dangers were imaginary. Only if one accidentally disturbed a wild animal would it attack. So far they had met with only one obstacle, a large python. But it just raised its blunt, hammer-like head, flicked out its forked tongue, and slid away to a higher branch. But halfway up the mountain, a more serious obstacle came their way. "A herd of wild elephants," Changun said.
taking care not to make the least noise, they crawled up a little ahead. They could not see the herd. The grey-black hides of the elephants blended too well with the foliage, but the sounds made by the herd, as it fed, grew louder. Soon it became clear that the elephants had chosen the spot as a feeding ground, and it seemed as if they might stay on for quite a while. There was no question of trying to slip through that herd. Their path upstream was firmly blocked. "What do we do now, Tenyak?" Changun asked. We wait. Her brother replied grimly. The children waited. Apart from the sounds made by the feeding elephants, the jungle was silent. The deep hush was broken only twice by the hoo-coo, hoo-coo call of a hoolock gibbon and a pangolin scampering through the undergrowth. They waited patiently for over 2 hours, and then finally they heard heavy bodies crash through the thick foliage. The elephant herd was on the move. They climbed for an hour and all of a sudden stumbled into a clearing. Hundreds of hoof marks were visible on the ground. There were also some pug marks of wild cats and imprints of elephant feet. Changun cried out, "It is a natural salt lick!" Wild animals came to lick the earth for salt. This took care of the salt requirement of their bodies. The salt spring furrow ran through the center of the clearing for some distance and then disappeared into a hollow. Tenyak and Changun raced towards the hollow. As they had guessed, it was a cave. The sunlight lit up the interior at the cave's mouth. The walls of the tunnel-like cave were coated with white crystals. Heaps of crystals rose like molehills from the floor and dangled like wasps' nests from the ceiling. The pure white crystalline heaps glittered in the slanting rays of the afternoon sun. Tenyak bent down and picked up a pinch of the crystals, putting it to the tip of his tongue. It's salt. He whispered in wonder, as if unable to believe his tongue. Soon he began to hop about wildly, in imitation of a tribal war dance, whooping and shrieking in gay abandon. We found salt! He cried. Changun crooned. "There's enough salt in this cave to last our village 1,000 years. That tunnel-like cave is a natural salt mine. The spring flowed through it, carrying some of the salt away," said Changun. The sun was already halfway down on its journey across the horizon. The children knew they must hurry back to their village. Though they wanted to locate the salt spring, they knew this was not the right time. They drank the water in the bamboo tubes. Then they placed the tubes upside down on the ground to dry them completely. They packed the tubes with salt. Then, carrying the treasure upon their backs, they began the descent home. The villagers had meanwhile begun worrying. When they saw the 2 children descend, the crowd broke out into loud cheers. The children ran excitedly to Grandma Kamlong. They shouted, "We've found a cave of salt! Our village will be prosperous again!" Unstrapping the bamboo tubes, they poured the salt onto the earth. The heaps glowed in the light of the setting sun. Grandma laughed happily. "Well done, children," the chief said. "Your courage deserves to be rewarded. You too will be the chief guests during this local festival." Picking Tenyak up, the chief placed him on his shoulders. Changun's father picked her up and placed her on his shoulders. Grandma Kamlong broke out into a Nokt ballad for courage. The villagers sang along and began a grand celebration.
इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आप लोगों को हिंदी में एनिमेट करके बता रही हूँ, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और चलिए, बहुत प्यारी स्टोरी है द क्राइस्टल केओ नाम की, वो सुनते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ग्रैंड माँ काम लॉन्ग है, ये कुछ पका रही है और पकाते समय उसका स्मेल तो इतना मतलब डिलीशियस स्मेल आ रहा है, लेकिन जो चूल्हे पे वो चीज़ बना रही हो, उसने एक चम्मच से लिया, थोड़ा सा उसको फोक दिया और वो फीकने के बाद वो खीर के जैसे जो आइटम है वो बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाया। तब जो थैंक है वो जोर से चिल्लाया, इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों टेस्टी नहीं लगा। ग्रैंड माँ ने तभी सोचा, स्मेल से ही पता चल रहा है। उसने तुरंत वाइट कलर का जो सॉल्ट रहता है वो उस जो सूप है उसमें डाल दिया और जैसे ही उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसने फिर से उस बच्चों को, दोनों बच्चों को, लड़की को भी लड़के को भी वो सूप उसने पिलाया। ओहो वाह, डिलीशियस, ये तो बहुत टेस्टी सूप लग रहा है। ग्रैंड माँ, तुमने कौन सा मैजिक कर दिया? ऐसे बच्चे उसे पूछने लगे। तब ग्रैंड मदर बताने लगी कि अरे भाई, बिना नमक के कोई भी चीज़ कैसे अच्छी लगेगी, मैंने नमक डाला है इसमें। ओ नमक, दोनों बच्चे एक साथ बोले। तो जो उनकी ग्रैंड मदर है उसने 3 चटाई और प्लेट वहाँ पे रख दिए और जो बाम्बू की प्लेट में उन लोगों को पानी भी दे दिया और वो वहाँ पे बैठ के राइस के साथ ये सारी चीज़ें खाने लगे। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो फिर ग्रैंड मदर बोलने लगी कि हमारे यहाँ ना ये जो सॉल्ट है ये पहले बहुत बहुत मिलता था, इसलिए हम लोग बहुत रिच थे, लेकिन अब इसकी जो मिलने की जो ये है ये कम हो गई है। जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे और फ्रूट्स आने लगे हैं, जंगली जानवर भी वहाँ पे है, तो इसके कारण अब हमारा जो देश है, हमारा जो गाँव है, यहाँ के लोग हैं ना, ये गरीब होने लगे हैं। तो ग्रैंड मदर को चंगुन ने पूछा कि ये तो बड़ी सरप्राइज़ वाली बात है कि ये सॉल्ट हम घर में बना सकते हैं। घर में नहीं बेटा, ये तो मिलता है, उसकी बहुत बड़ी गुफा भी होती है और हम लोगों को वो रेडीमेड नेचर से मिलता है। जो पानी रहता है वो खारा पानी अगर सूख जाता है सन की हीट से, तो उसमें से हम लोगों को ये सफ़ेद जो सॉल्ट है ये मिल जाता है। ये नेचर ही हमें देता है, लेकिन हम इसे बाद में बेच के पैसा कमाते हैं। हमारे आज जो गांव के लोग हैं ये इसी के कारण बहुत अच्छे से रिच थे, अच्छे कपड़े, अच्छे सब कुछ, ये सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी नहीं मिल रहे, इसलिए तो लड़की जो चंगुन है वो पूछती है, दादी माँ अब नहीं मिलता है? तो दादी माँ बोलती है, नहीं, इसीलिए तो हमारे विलेजर्स अभी ना बहुत पुअर हो गए हैं, सेल्फ सफिशिएंट बिल्कुल नहीं रहे हैं। और पता है ये जो लोग हैं ये अभी इतना चलते भी नहीं है, ढूंढते भी नहीं हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि मोस्टली विंटर सीज़न जो होता है ना, ये टाइम पे ये ड्राइड होता था ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अच्छा, ये लड़का जो बोलता है वो बोलता है कि ऐसे क्यों, टेल मी दादी माँ, अब ये क्यों नहीं मिल रहा है? ये प्रॉस्पेरिटी, अगर इतनी संपत्ति हमारे विलेज में है तो ये क्यों नहीं है? तो दादी माँ बोलती है ना, लेकिन ढूंढने के लिए लेज़ी लोग कैसे? तो ये थेयांग और चंगुन है, ये बोलते कि हम लोग ढूंढ के लाते हैं। तब वो जाते हैं, रास्ते से जंगल की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे उनको रिवर मिलती है। रिवर के तरफ से वो देखते हैं, दूर सबसे हाइटेड प्लेस पे जाके वो देखते हैं, तो उनको जो बहता हुआ पानी है वहाँ से उसको बहुत बड़ी बड़ी जो रुका हुआ जो पानी है वो उनको दिख जाता है। और जो जंगल है उस एरिया में शायद से ये बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पे देखो, वहाँ पे थोड़ा पानी का, और जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। फिर वो घर आते हैं, घर आने के बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद दूसरे दिन तुरंत वो थोड़ा सा बाम्बू जो है ये अपने पीछे बांध के ड्रिंकिंग वाटर, उसे पहले ज़माने में बॉटल नहीं थी ना, तो ये बच्चे बॉटल नहीं, वो वैसे पानी के लिए बाम्बू का बॉटल बना के वो लपेट के लेके जाते हैं और फिर जंगल की तरफ धीरे धीरे, बिल्कुल उनके डर भी नहीं लग रहा है और वो बहुत तेज़ी गति से जा रहे हैं। वैसे तो जंगल में इतना डरावना होता भी क्या है, और एक्सीडेंटली अगर कोई वाइल्ड एनिमल मिल भी जाए तो वो छुप जाते हैं, और अगर उनके ऊपर अटैक भी करेंगे तो वो दोनों बच्चे हैं तो वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या मिला? तो उन्हें बहुत बड़ा सा पाइथन मिल गया। उसने पहले इसकी तरफ देखा, अपना सर जो है वो हिलाया, फिर अपनी जो लॉन्ग टंग है वो इनको दिखाई, और दिखाने के बाद वो ऊपर पेड़ पे बहुत हाइटेड प्लेस पे चला गया।
अब ये जो है ये चलने लगे। फिर इन्होंने देखा, अरे बाप रे, यहाँ पे तो एलिफेंट का झुंड आ रहा है। और उन्होंने वो एलिफेंट को दिखे भी नहीं, ऐसी इतना चतुराई से वो बड़े वाले पेड़ के पीछे जाके खड़े हो गए और वहाँ से देखने लगे कि ये एलिफेंट का जो झुंड है वो क्या कर रहा है। एलिफेंट का जो झुंड था हाथियों का, वो बिल्कुल बिना आवाज़ किए जोर जोर से चल रहा था, जा रहा था। बहुत बड़ा झुंड था। उन्होंने वहाँ पे जो घास थी वो घास फूस बहुत अच्छे से खाई। खाने के बाद वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के रहे और फिर वो वहाँ से चले जाएंगे, ये सोच के ये बच्चे दूर दूर से उनको देख रहे थे। एक भी हाथी का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया था, इतनी अच्छे से ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। थियांक जो है उसको वो लड़की पूछती है कि भाई हम यहाँ पे कितने देर तक रहेंगे। तो वो लड़का बोलता है कि चलो थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं, बाद में फिर जैसे ही हाथियों का पूरा खाना समाप्त हो गया वो वहाँ से चले गए। जंगल बिल्कुल शांत हो गया। जो गिबन है, जो बंदर है, वो जोर जोर से आवाज़ देने लगा। फिर पेंगोलियन, ये अलग अलग आपको जंगल में मिलने वाले जंगली जानवर बोल सकते हैं। ये 2 घंटे के बाद इतना सारा बिल्कुल साइलेंटली पेट भर के घास खाने के बाद ये हाथी जो है ना, ये थोड़ा सा आराम करने के बाद ये अपने अपने रास्ते निकल गए। और फिर बच्चे जो है ये छोटा सा जो मार्ग चलने के लिए था उसके ऊपर से वो चलने लगे। फिर उन्होंने देखा कि जो वाइल्ड कैट होती है उसके निशान, पैरों के निशान वहाँ पे दिखे। उनको ये तो पता था कि ये हाथियों के नहीं हैं, लेकिन ये जंगली इसके हो सकते। फिर उन्होंने देखा कि ये नेचुरल जो सॉल्ट होता है ना, ये चाटने के लिए वाइल्ड एनिमल मोस्टली उस एरिया पे आते रहते हैं। उन्होंने अच्छे से देखा, अरे बाप रे, यहाँ पे तो सच में जो नेचुरल सॉल्ट है वो बन के है। उनको दूर से ही वो दिख रहा था और वहाँ पे गुफा के जैसे कुछ तो था जहाँ से वो देख सकते थे कि अंदर बहुत सारा जो चमकीला पदार्थ है वो क्या है, तो वो सॉल्ट ही है। उन्होंने देखा वहाँ से सनलाइट जैसे ही जा रही थी तो वो जो सॉल्ट के जो लंबे लंबे आप उसे लवण्य स्तंभ बोल सकते हैं, वो जो क्राइस्टल के जैसे थे वो चमक रहे थे। उन्होंने देखा और ये तो बहुत है, ये तो बहुत पूरी की पूरी गुफा जो है ना इस सॉल्ट से भरी हुई थी। उन्होंने अच्छे से उसे देख लिया। समुंदर का जो पानी, जो नदी का खारा पानी होता है वो उसके अंदर घुस गया होगा और फिर जो सनलाइट है उसकी गर्मी के कारण ये तैयार हो गया। उन्होंने टेस्ट करके देखा तो ये इतना अच्छा सा सॉल्ट उन्हें मिला। उनको बहुत हैरानी हो गई। हैरानी होने के बाद ये बोले, अरे एक बार तुम तो करो ना। उन्होंने देखा और फिर एक दूसरे को देखने के बाद बोले, ओहो, उन्होंने डांस भी किया कि बाप रे, इतना बड़ा अचीवमेंट हम दोनों ने कर लिया है। अब घर जाएंगे, घर जाने के बाद ये हम लोगों को मिला है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन लोग हमारे ऊपर बिलीव कैसे करेंगे? बहुत साल, हज़ारों सालों से लोगों को तो ये पता ही नहीं है। और ये जो टनल है, ये जो केव है, ये नेचुरल है। ये स्प्रिंग के टाइम तक तो शायद से बह जाएगी, ये सॉल्ट से चला जाएगा, फिर हम लोग इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। और फिर बाद में ये फिर से विंटर सीज़न आ जाएगा। ये अभी क्या करें? हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट है, वो लोग कुछ करेंगे। ऐसे यही फिर उन्होंने बाम्बू में से पानी पी लिया और वो बाम्बू की जो स्ट्रिप्स थी, जो बॉटल के जैसे उन्होंने लाया था, उसके अंदर पूरा का पूरा वो सॉल्ट उन्होंने जितना उसमें समा सकता है उतना सॉल्ट उन्होंने ले लिया। और लेने के बाद वो अपने बैग पे डालने के जो शोल्डर है उसके ऊपर डालने के बाद वो आए। विलेजर्स लोग जो है इन बच्चों की बहुत चिंता कर रहे थे, इतना शाम होने को आया लेकिन ये बच्चे क्यों नहीं आए करके। तो वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। बच्चे ग्रैंड मदर के पास गए और ग्रैंड मदर को जो सॉल्ट के बारे में, जो केव है उसके गुफा के बारे में उन्होंने बताने लगा कि विलेजर्स अभी फिर से जो उनकी संपत्ति है वो उनको मिल जाएगी और फिर से एक बार गांव जो है, गांव के लोगों को काम मिल जाएगा। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताने लगी। ग्रैंड मदर को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हो गई। उस गाँव के जो चीफ है उनको भी ये बात पता चली। उन्होंने इन बच्चों को बोला कि तुमने इतना बड़ा करेज किया जंगल
की तरफ तुम अकेले गए तो तुमको कुछ तो प्राइज़ मिलना चाहिए ना। तब उन्होंने उसको उठा लिया, लड़के को अपने शोल्डर पे बिठा लिया और चंगुन के जो फादर है उसने चंगुन को उठा लिया, लड़की को अपने शोल्डर के ऊपर। और जो ग्रैंड मदर है उन्होंने बहुत प्यार से गाना भी अपने बच्चों के लिए, करेज के लिए गाया। विलेजर बहुत खुश थे कि अब उनको फिर से वो अमीर बनने वाले थे, उनको काम मिलने वाला था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है तो आपने देख भी लिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए प्यारे प्यारे वीडियो।